Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I'm going to discuss chapter probability from JEE-Main mathematics. So let's start. Basically, what is probability? Probability is something in mathematics which tells us how likely the event will happen. मतलब किसी चीज की होने की क्या probability है. Probability of an event is the measure of the chance that the event will occur as a result of an experiment. The probability of an event is the ratio of number of observations of the event to the total number of observations. मतलब जो आपको चाहिए वो न्यूमरेटर में रहता है अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो डिनोमिनेटर में रहेगी. लेट्स से यू आर टॉसिंग अ कॉइन एंड यू वांट हेड. सो हेड तो एक ही बार आ सकता है. सो न्यूमरेटर में वन रहेगा एंड डिनोमिनेटर में यू विल टेक टू बिकॉज देयर आर टू केसेस हेड एंड टेल. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ likely an event can happen. Then there are two cases of probability, one with replacement and other with without replacement. In this case, let's say you have two coins. Let's say you have let's say you have a bag of coins, and in that bag you have two five coins and two 10 coins, and you have been asked to take out one coin. So the probability of you taking out the coin with, let's say, 10th mark is 2 by 4 because there are two coins of 10 and total 4 coins, so 2 by 4. So let's say you took out a 10 coin and the probability for that is half. But after taking out a 10 coin, you are again asked to take out a coin, and now it is again say the again the condition is same that you have to take out a 10 coin. But now since one coin is taken out, you are only left with three coins, so your probability would be 1 by 3. But if you again put the coin in the bag and then again you have been asked to take out the coin, then again it would again goes to 2 by 4. But these are the two conditions only. If you have been given that you can replace the bag or you can't replace, that is, either you can put the coin again in the bag or you can't. So these are the two conditions of replacement and without replacement. When we say probability with replacement, this implies that the events that are taken in the probability are completely independent of each other. And when we say without replacement, so they are dependent on each other, basically, because it depends on you whether you put the coin inside the bag or not. So, and this is also important thing because in many questions they say without replacement, so you have to deal according to the question. Coming on to independent events, independent events are those events where the outcome of one event is not dependent on the other. Let's say you have one coin and you have something else. Let's say a coin is of head and tail, and the other coin is biased, and the other coin both sides is heads only. So the outcome of heads on the second coin is independent of the first coin, which means the outcome of event on the second coin is not dependent on the first one. मतलब जब एक की probability is independent of others, then we say that both the events are independent, otherwise they are dependent. Two events are said to be independent only when the occurrence of one does not at all affect the occurrence of another. In such cases, the probability of the events also does not get affected at all by each other. And reverse is dependent events, जहाँ आपका एक event दूसरी event पे dependent रहता है, those are known as dependent events. जैसे कि मैंने example दिया था, when you take out a coin from a bag and you have been asked to take out the coin two times. So if it depends on the first trial that what you can take out on the second trial. So if these events are dependent on each other, you will say that they are dependent, otherwise independent. Complementary events are those events where there are only two outcomes possible, like tossing a coin. Only two outcomes are possible, either head or tail. So whenever there are only two outcomes, we say that those two outcomes are complementary events. Equally likely events means जिन दोनों की probability same हो. If you have been given a condition and the outcome of the various sample spaces is coming out to be same, like again same coin example, if you will toss a coin, the probability of coming heads is half, and similarly tails is also half. Since both have equal probability, so they are equally likely events.
Coming on to Bayes theorem describes the probability of occurrence of an event related to any condition. Means जब आपको दिया रहता है कि you have to toss a coin with some condition. Let's say you will toss a coin if if you put out if you take out the red ball from the bag. मतलब they are saying, let's say you have a condition in which you have three balls in a bag. One is red colored, one is green colored, and other is white colored, and you have one coin. And the condition is that only if you take out red balls from the bag, then only you can toss the coin. So the condition for tossing the coin is taking the red bag out of the ball. So basically you have to take out the probability of tossing the coin, but after taking out the red ball. So this is a condition, and for solving these kinds of probabilities we use Bayes theorem. And what is the statement of Bayes theorem? If A and B are two events, then the formula for Bayes theorem is given by P A by B is P A intersection B upon PB. Here, this sign of reverse U is the sign of intersection. So this is the sign of intersection, and if you will take simple U, this is the sign of union. Intersection means both the events should happen simultaneously, and union means either one can happen or other can happen or both can happen. Union implies either one can happen or the second can happen or both can happen. But intersection implies both should happen only. Only then this A union B would be one. Otherwise it would be zero. So P A by B is the division of P A intersection B by PB, where PB is the probability of occurrence of event B, PA is the probability of occurrence of event A. So P A by B is the probability of the condition when event A is occurring while event B has already occurred. Matlab, the red ball is already taken out of the bag and then you are tossing the coin. So when you are tossing the coin, the probability would be half of heads and half for tails. So the entire probability would be, firstly you have to take out the red ball from the bag. So for taking out red ball from the bag, the probability would be 1/3 because there is only one red ball and there are three balls in total. So probability of taking out the red ball is 1/3 multiplied by getting a heads on the coin. For that you have to multiply it by half because a coin has two sides, one heads and one tails. So 1/2 is the probability of getting heads. So this is the entire probability. So basically, you have to toss the coin after you take out the red ball. So tossing the coin is dependent on something. This dependency only implies the Bayes theorem, and PB is nothing but the event which has already occurred. In this case, the red ball which is already taken out. PA intersection B is the probability of event A and event B, and PB is the probability of event B. So this is the statement of Bayes theorem or the formula PA such that probability of event A if B has already occurred is equal to P A intersection B divided by PB. So whenever you have been asked to calculate the probability of something, given that some event has already occurred or the event is conditional, then you will apply Bayes theorem to that. The formula to find the combined probability of events obtained with replacement. जब हमने replace कर दिया, let's say मैंने ball को वापस back में डाल दिया, and we simply find the product of the probabilities of the event directly. मतलब जब मेरे को ऐसा बोला जाए कि both the events, let's say A and B are happening together, so मेरे को combined probability निकालनी है with replacement. उस केस में जो मेरा P A intersection B होता है, that can be written as P A P B, where P is the probability of event A and PB is the probability of B. मतलब A and B की probability है, but they are occurring independently. They are not dependent on each other. The conditional probability of an event with respect to another event is the probability of occurrence of the event after the first event has already taken place. वही चीज की conditional probability implies कि आपको जो चीज दी गई है वो आपको करनी है, but वो conditional है कि if this happens then only you can do this thing. लेट्स से जैसे वही वाला एग्जांपल, अगर रेड बॉल आएगी तभी आप कॉइन को टॉस कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट टॉस द कॉइन. सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड द आंसर इज सेम. पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए such that this is the probability of occurrence of event B
after A has already occurred. So please remember this formula of P A intersection B. This is equal to P A into PB, given that A and B are independent of each other. Then coming on to rules of addition. For two events A and B, if their probabilities are written as PA and PB, then the rule of addition can be written as this is simply ninth class step only. If you have been given mutually exclusive events, mutually exclusive implies that those two events are independent of each other, which means the occurrence of one does not affect the occurrence of another event. So let's say you have been given the probability of uh, playing cricket and playing football. Both are independent of each other. Let's say you will score a goal in football and you will hit a six in cricket. Both are independent of each other. So if the condition A is said to be is said like you have to hit a six and B is like you have to score two goals in football, then both are independent of each other. So if you have been asked to calculate P A or B, then you can simply add them because they are independent of each other. Uh, they do not affect each other's occurrence. So PA or B is equal to PA plus PB. And if they are non-mutually exclusive, then this is equal to, this is a very important formula, PA union B, which means PA or B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. We will take this intersection term only when they are dependent on each other, and this will be given to you in the question itself. After reading the question, you can easily understand which formula you have to apply. Just remember the difference between these two. Union implies the probability of occurrence of A or B or both, but the intersection implies that both need to occur simultaneously. Otherwise we can use union in place of intersection. But this is a master equation probability. This is used many a times, so please remember this one. Then coming on to rules of multiplication. Rules of multiplication are applied on intersection thing. That is, let's say two events A and B are occurring and their probabilities are written as PA and PB. Then मैंने अभी बताया कि rules of addition के लिए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा because they are if mutually exclusive, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. Then we can say that PA or B is PA plus PB and PA and B is zero. Why? Because एक की probability अगर दूसरे को affect नहीं कर रही है, दोनों साथ में हो नहीं सकते. So PA and B zero होगा. और वही चीज अगर इंडिपेंडेंट होगी तो अभी मैंने पीछे बताया था यहाँ पे कि इफ पी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज्ड इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसको भी ध्यान रखना. लेट मी राइट इट हियर ओनली. पी ए intersection B. Kindly jot down all these formulas because these are very important. PA into PB. Then for dependent events, we can apply Bayes theorem as I already told you. PA and B is equal to PA into PB by A, where B by A represents the probability of occurrence of B after A has already occurred. Going on to property number 5. If A, B, and C are three events associated with a random experiment, then PA union B union C. मतलब अब मैं तीन का यूनियन ले रहा हूँ. तीन का यूनियन लेने का मतलब क्या हुआ? Either A will occur, or B will occur, or C will occur, or A and B can occur, or B and C can occur, or A and C can occur, or all three can occur simultaneously. So यहाँ पे मेरे पास सात कंडीशन होती है. क्या तो तीनों सिंगली अकर हो सकते हैं, क्या तो दो दो के पेयर में हो सकते हैं, या फिर तीनों साथ में हो सकते हैं. तो और का मतलब यही होता है कि मेरा इसमें से एक भी अगर ट्रू हो गया तो फिर आई विल गेट वन. सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है. पी ए या पी बी या पी सी, पी या फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दिस इज फॉर थ्री कंडीशंस या थ्री वेरिएबल्स, आप जो भी बोलो.
दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ थ्री इवेंट्स सच दैट आई हैव टू कैलकुलेट इफ पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज गिवन बाय दिस वन। एंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ऑब्वियसली बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इनका इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा। सो दिस थिंग वुड बी जीरो, दिस थिंग वुड बी जीरो, दिस थिंग वुड बी जीरो एंड दिस थिंग वुड बी जीरो, एंड यू विल ओनली गेट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। In case of mutually exclusive implies if these are independent of each other, अगर independent होंगे एक दूसरे के तो P A and B would be zero, so we can simply mutually exclusive होंगे तो फिर I can say that P A and B would be zero from here, and so I can say that P A intersection B intersection union B union C is equal to P A plus P B plus P C। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। वेन डायग्राम क्या बोलता है? वेन डायग्राम बोलता है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब मैं ए और बी दोनों को मिलाऊंगा तब मेरी एंटायर प्रोबेबिलिटी वन बन जाएगी। मतलब अगर मेरा ये इवेंट ए है और मेरा फिर बचा हुआ इवेंट बी होगा, अगर ये पूरा एंटायर वन है, पूरा एंटायर अगर ये वन है तो ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू वन। दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी ए प्लस पी बी शुड बी इक्वल टू वन, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है। और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये ए है तो ये बी है, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पी ए एंड बी इंडिपेंडेंट के केस में जीरो नहीं होगा, उस केस में वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। लेकिन अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है देन वी कैन से दैट पी ए एंड पी ऑफ ए एंड बी विच इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज उन दोनों के इंटरसेक्शन से पूरा मेरा पूरा यूनिवर्स बन रहा है, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि जब मैं दोनों को ऐड करूंगा देन आई एम गेटिंग वन ओनली, उस केस में पी ए एंड बी जीरो होगा। अदरवाइज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स we can say that PA and B is equal to PA multiplied by PB। सो उसी चीज को यूज करके मैं इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर मेरे को दिया हुआ है कि मेरे इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव which implies PA plus PB plus PC is equal to 1, then my intersection is 0, this thing is 0, this thing is 0, this thing is 0, and this is also 0, so I can simply write P of A union B union C equal to PA plus PB plus PC। ठीक है? Then property number 6, if there are three events A, B and C, then P at least two of A, B, C occur। मतलब at least two of A, B, C occur implies, sorry, हाँ, P at least two of A, B और A, B and C occur मतलब क्या तो A हो और A, B हो साथ में, या B, C हो या A, C हो। मतलब एटलीस्ट दो को होना ही है, तीन भी हो सकते हैं। मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ आइदर A और B और A and C। This is the probability of occurrence of either A and B or A or A and C or B and C और A and B and C, मतलब तीनों भी हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट दो को तो होना ही है। तो उसके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A। मतलब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बना के समझाऊं, लेट्स से मेरे पास तीन इवेंट्स दिए हुए हैं, ये है मेरा इवेंट A, ये है मेरा इवेंट B और ये है मेरा इवेंट C। ठीक है? एंड आई एम सेइंग दैट एटलीस्ट टू ऑफ एबीसी अकर। तो मेरे को कौन सा रीजन चाहिए? मेरे को चाहिए ये वाला रीजन, यहाँ से लेके ये पूरा रीजन मेरा आंसर है। ठीक है? यहाँ पे एटलीस्ट दो इवेंट्स आपस में अकर कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे को वो चीज चलेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट दो करे, तीनों साथ में करें तो वो भी चलेगा। तो मेरा जो रीजन है वो ये वाला है, ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है? तो मैं ये वाली, लेट्स से अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है लेट्स से, तो जो मेरा ये वाला रीजन होगा ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये चीज भी आएगी, ध्यान रखना। और बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा ये वाला रीजन,
सी इंटरसेक्शन ए में आ जाएगा ये वाला रीजन। लेकिन इससे मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा रीजन तो ले लिया, लेकिन मेरा ये वाला जो रीजन है ये दो बार आ गया। तो मेरे को इसको दो बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को तो एक ही बार चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब ए इंटरसेक्शन बी किया था मेरे को ये पूरा रीजन मिला, जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी किया तब मुझको ये पूरा रीजन मिला, और जब मैंने सी इंटरसेक्शन ए किया तब मेरे को ये पूरा रीजन मिला। तो बेसिकली ये जो बीच वाला रीजन है मेरे को तीन बार मिल रहा है, लेकिन मेरे को ऐड तो एक ही बार करना है। तो मैं दो बार इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग टू टाइम्स P of A intersection B intersection C. Why I'm doing so? Because I'm getting this region three times and I want for only once, so I need to subtract it. Cool. Then moving to next one. P exactly two of A B C occur। अब मेरे को exactly टू चाहिए, मतलब मेरे को ये वाला रीजन चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस दो की जगह तीन बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये तीन बार ऐड हो गया था ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली दो बार, एग्जैक्टली टू ऑफ इवेंट्स ओनली अकर आइदर ए एंड बी, और बी एंड सी, और ए एंड सी। तो फिर मैं इस वाले रीजन को तीन बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट दिस रीजन नाउ। सो माइनस थ्री टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब P एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी अकर, ये भी अपन लोग कर सकते हैं। पहले मैं सबको ऐड कर लूंगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, लेकिन उसमें मेरा ये वाले रीजन भी ऐड हो गया तो मेरे को उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो पी ए प्लस पी सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम देयर आई विल गेट माई फाइनल आंसर। मतलब इसको भी मैं उसी तरीके से कर लूंगा जैसे मैंने समझाया। इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला। If A and B are independent events, then P A by B is equal to P A। obvious सी बात है। मैं बोल रहा हूँ P A by B क्या रिप्रेजेंट करता है? P A by B represents the probability of occurrence of A after B has already occurred. This is the meaning of P A by B. Let me make it clear. Let's see. मेरे को बोला है पी ए बाई बी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दिस इंप्लाइज मेरा बी हो चाहे ना हो, मैं ए को तो हो ही सकता हूँ ना। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, लेकिन मेरे को ये बोला गया है कि मेरा बी हो गया है। अब बी चाहे हो चाहे ना हो उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। सो पी ए बाई बी हमेशा पी ए के बराबर ही आएगा, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिमिलरली पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी, जो मैंने आपको बताया था। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अगर टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट, ये एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इफ टू इवेंट्स इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर independent of each other if two events are independent of each other independent of each other of each other, then what we can say? Then we can say that ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि पी ए यूनियन बी होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए पी बी इन केस व्हेन बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और चाहो तो अब मैं इसका डी मॉर्गन थ्योरम ले सकता हूँ। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम? डी मॉर्गन थ्योरम बोलती है कि पी ऑफ ए प्लस बी का जब मैं बार करूंगा, व्हेन आई विल टेक द बार ऑफ दिस थिंग, आई विल गेट पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। दोनों सेपरेट हो जाएंगे और मल्टीप्लाई में चले जाएंगे बेसिकली। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। अगर मैं 1 सेकेंड, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। हियर दे आर सेइंग दैट
P of A intersection B, जब मैं इसका बार ले रहा हूँ, when I am taking the bar of this thing, P A, चलो मैं सीधे से लिख देता हूँ, P A union B is equal to 1 minus P of A bar into B bar. ठीक है, P B bar. अब ये वाले एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो क्वाइट गुड, otherwise you have to remember these things because these are very important for JEE mains even. P B bar. ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस पी ए बार पी बी बार, और ये मैंने इस पर डी मॉर्गन लगाया, इस पर जब मैं डी मॉर्गन लगाऊंगा तब यहाँ से मुझे मिल जाएगा पी ए बार पी बी बार, और एडिशन में मिलेगा वो, मतलब डी मॉर्गन से तो नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एडिशन आ जाएगा। ये अपन ऐसे देख सकते हैं कि, एक मिनट, 1 सेकेंड, इसको मैं वेन डायग्राम समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मेरे को बोला गया है क्या, मेरे को बोला गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मेरे को बोला है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कोई बोला गया है ना। ठीक है, अब मेरे को पूछा है पी ए यूनियन बी, मतलब दोनों का साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको मैं सॉरी क्लब करना भूल गया। और मेरे को बोला है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, और फिर मेरे को जब पी ए यूनियन भी निकालना है, मतलब दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की मतलब जब ए की प्रोबेबिलिटी या बी की प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग प्लस दिस थिंग माइनस दिस थिंग, मतलब इसका तो फॉर्मूला होता है ना सीधे सीधे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख सकता हूँ पी ए पी बी, सो लेट मी राइट इट, लेट मी मेक द स्पेस फर्स्ट। मैं बस ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। पहले मेरे को लगा डी मॉर्गन से डिराइव हो जाएगा, बट डी मॉर्गन से डिराइव नहीं होगा क्योंकि उसमें एडिशन आ जाएगा इसलिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, उसको मैं लिख सकता हूँ पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी माइनस पी ए पी बी। ठीक है, अब लेट मी टेक पी ए कॉमन, I will get, if I will take PA common, then it would be difficult actually. I know this thing is my, mhm, that's the problem. What can I do now? Hmm, I can write PA as, let me eliminate PA only. I can write PA as 1 minus PA bar plus 1 minus PB bar, 1 minus PB bar, ये तो मैं लिख सकता हूँ ना। ऑब्वियसली जितना ए बार होगा, पी ए बार प्लस पी ए हमेशा वन होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। तो इसको भी मैं वैसे लिख देता हूँ, इसमें लिखता हूँ 1 माइनस पी ए बार 1 माइनस पी बी बार, तो वहां से मुझे मिल जाएगा 1 माइनस पी ए बार 1 माइनस पी बी बार, सो आई विल गेट 1 माइनस पी ए बार माइनस पी बी बार प्लस पी ए बार पी बी बार, पी ए बार पी बी बार। ठीक है, अब सिंपल है, अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तब ये प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस पी ए बार एंड माइनस पी ए बार वुड कैंसल, सिमिलरली पी बी बार एंड पी बी बार वुड कैंसल, एंड 1 1 would cancel with this thing, so you would be left with 1 minus p a bar p b bar, that is written here. So this is the derivation for this formula, which is not at all required for you when you will write JEE Mains paper. You can just remember the formula, but if you forget then you can derive it in this way. That's what I wanted to tell you, so I hope you got it. So now let me make it clear.
ठीक है। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ ये फॉर्मूला, बस मैंने बता दिया। बाकी यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस डेरिवेशन, जरूरत नहीं है इसका, आप सीधे सीधे याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को। एंड यू इवन यूज योर वेन डायग्राम टू गेट टू द आंसर। ठीक है। बाकी इफ यू वांट टू रिमेम्बर यू कैन रिमेम्बर दिस वन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज रिमेम्बर दिस वन। देन इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी रूल्स पे आते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी रूल्स क्या बोलते हैं? टू इवेंट्स आर नोन टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द occurrence ऑफ वन इवेंट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। जैसे मैंने बताया कि एक इवेंट का occurrence से दूसरे इवेंट का occurrence मैटर नहीं करता। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ए एंड पी बी with their probabilities, then the independent rule of multiplication is probability of occurrence of both पी ए एंड बी is equal to पी ए क्रॉस पी बी। जी मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ पहले भी। ये मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी है। और इंटरसेक्शन को मैं एंड ही बोलता हूँ। इंटरसेक्शन इज एंड यूनियन इज और, इसको भी ध्यान रखना अगर ये पता नहीं है तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अगर दो इवेंट्स, if two events are independent of each other, then I can simply write P A and B is equal to P A into P B। ठीक है। but they should be independent, otherwise you can't write this one। then for any two events A and B, the probability that exactly one of A B occurs is given by, अब exactly एक ही हो मतलब P A plus P B, मतलब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाऊं, कोई भी चीज समझनी है तो यू कैन सिंपली ड्रॉ द वेन डायग्राम, नथिंग एल्स। व्हाट दे आर सेइंग दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अकर्स, मतलब क्या तो इतना रीजन मिले मुझे, क्या तो इतना रीजन मिले, विच मीन्स पी ए प्लस पी बी माइनस ये वाला रीजन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मैंने ये वाला रीजन 2 बार ऐड कर दिया ना, मैंने इसको पी ए में भी ऐड कर दिया, मैंने इसको पी बी में भी ऐड कर दिया, लेकिन मेरे को रीजन एक बार भी नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज आई ओनली वॉन्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। और जब मैं पी एंड पी बी ऐड करूंगा, देन आई एम एडिंग दिस रीजन 2 times, so I have to subtract it 2 times, so PA plus PB minus 2 times P of A union B, because I don't want this region and I am already adding it 2 times, so I need to subtract it also. That's why PA plus PB minus 2 times P of A union B is equal to probability of occurrence of exactly one of A and B। तो ये चीज हो गई, और फिर मैं पी ए प्लस पी बी को पी ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ से मैं पी ए प्लस पी बी को रिप्लेस कर सकता हूँ पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से। सो पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ पे, तो ए कैंसिल हो जाएगा एंड आई वुड बी लेफ्ट विद दिस वन। So this is the formula for exactly one of A and B can occur if they are independent. Then if A and B are two events associated with a random experiment, देन फिर यहाँ पे मेरी आ गई बेस थ्योरम, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए इफ पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पी बी बाई ए निकालता हूँ तब मैं पी ए को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, एंड आई नो कि अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तब मेरी प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी भाग जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इन बोथ दीज कंडीशंस पी ए एंड पी बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि बी तभी होगा जब मेरा ए अकर कर जाएगा, या ए तभी होगा जब मेरा बी हो जाएगा। तो अगर ए और बी हो ही नहीं रहे हैं, then though I can't calculate conditional probability. So this is the condition that PA and PB should not be equal to zero. Then only you can write P of A intersection B equal to PA into PB by A, or P of A intersection B equal to PB into P of A by B. Both are correct, just PA and PB should not be equal to zero. If PA is equal to zero, then you need to apply this formula, and if PB is equal to zero, then you need to apply this formula. So this was all about probability rules. Then coming on to the last concept of probability, this is also important. Probability distribution of a random variable. तो मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता हूँ प्रोबेबिलिटी को? मेरे पास लेट्स से 3-4 केसेस दिए रहेंगे, एंड दे विल आस्क मी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस केस। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल में। तो लेट्स से ये मेरे पास केसेस है x1 x2 डैश 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 अप टू xn।
ये सारे मेरे पास केसेस है ऑफ occurrence of event x, and px is the probability of their occurrence. like you can say that p1 is the probability of occurrence of x1, p2 is the probability of occurrence of x2, and similarly pn is the probability of occurrence of xn. ठीक है? और वेन डायग्राम से या फिर अपनी जनरल नॉलेज से या फिर बेल कर्व से कहीं से भी अपने को पता रहता है कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होगा. सो सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1. Then the real numbers x1, x2, dash, dash, dash up to xn are possible values of random variable x, and p1, p2, p3, dash, dash up to pn are the probabilities of random variable x, जो मैंने अभी आपको बताया. So we can say that pi represents the probability of xi, मतलब x1 की probability p1, x2 की probability p2, x3 की p3, dash, 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 xn की pn. So sum of probabilities 1 होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है sigma pi is equal to 1. तो अब मैं चालू करता हूँ. सबसे पहले लेट्स से मेरे को बोला गया कि मेरे को मीन निकालना है. मेरे को ये रैंडम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एंड दे आर सेइंग टू कैलकुलेट द मीन ऑफ डेटा. सो if x is a random variable and its possible values are x1, x2 up to xn, obviously associated with the probabilities, then the mean of this random variable x can be given by this formula: sigma xi into pi, where my xi is the event and pi is the probability of occurrence of event xi. So मैं ये मेरे मीन का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, बिकॉज ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पेपर में कि आपको एक टेबल दे देंगे ऑफ xi's and pi, and they will just ask you to calculate the mean which is represented by ex. So you need to apply this formula sigma xi into pi, where mu represents the mean of random variable and is also called the expectation. इस expectation इसको बोलते हैं, इसलिए इसका नाम E होता है. E into x, where E represents the expectation of occurrence of these random variables. ठीक है? So x1 p1 plus x2 p2 plus dash 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 up to xn pn is my mean. ठीक है? Thus, the mean or the expectation of the random variable x is defined as the sum of the products of all possible values of x by their respective probability values. Moving on to variance. So variance कैसे निकालूंगा मैं? Variance of a random variable. Assume that x is a random variable whose possible values are x1, x2 up to xn, and with the probability this p x1, p x2 up to p xn. तो ये वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको. टेबल दी रहेगी आपके पास एक्स आईज की और पी आईज की, और अभी आपने मीन निकाला. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस. सो फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस, दिस इज द फॉर्मूला similarly which we use in statistics. The xi is the my data values and mu is the mean, which I will calculate using sigma xi pi. So इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स आई, फिर मैं इनका सिग्मा कर दूंगा. फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माय वेरिएंस. So this formula, this is used for calculating variance, and this can also be represented by E, where E represents the expectation. तो ये वही चीज़ है जैसे कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं. सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर. ई एक्स तो मेरा मीन होता है, मैं वो यूज करता हूँ ना. मैं प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज करता हूँ? स्टैटिस्टिक्स में मैं यूज करता हूँ ना सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर. This thing I use in statistics only. So same formula is used here. E of x square minus ex square. Basically mean of x square and minus ex, which is the mean of random variable ka square. So these are the 2-3 formulas from where I can calculate my variance. So ex is the mean and variance is represented by sigma x square, where sigma x is my standard deviation जो भी आगे आएगा. तो जब मैं बेसिकली वेरिएंस का रूट ले लूंगा तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. ठीक है? सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस सिंपल एक्सप्रेशन. So let's move ahead. Standard deviation of a random variable, as I told you, you have to just you just need to take the root of your
variance, you will get the formula for standard deviation, which is root of sigma of xi minus mean square multiplied by the probability. So now let's do one question on this concept. Find the probability distribution for the number of doublets in the three rows of a pair of dice. मतलब बेसिकली मेरे को थ्री रोज, मतलब मेरे को एक मेरे को पेयर ऑफ डाइस दिए हुए हैं, मतलब दो डाइस दिए हुए हैं, और मैं उन दो डाइस को तीन बार थ्रो करूंगा एक साथ। तो मेरे को कितनी बार डबलेट आएगा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो जब मैं दो डाइस को थ्रो करता हूँ, तो डबलेट आने के लिए मेरे पास छह ही केस बनेंगे, क्या तो वन वन आ जाए, क्या तो टू टू आ जाए, क्या तो थ्री थ्री, आइदर फोर फोर, या फाइव फाइव, या सिक्स सिक्स। दीज आर द ओनली सिक्स केसेस जहाँ पे मेरे को डबलेट मिलेगा, ठीक है। सो एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 3। इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36। मतलब मेरे को पता है कि मेरे पास 36 केसेस होते हैं, वन के साथ वन, वन के साथ टू, वन के साथ सिक्स, ऐसे करके टू के साथ वन, फिर टू के साथ टू, फिर टू के साथ सिक्स, ऐसे करके टोटल 36 केसेस होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 6/36 विच इज 1/6। क्योंकि डबलेट तो चाहिए है और टोटल केसेस है 36, तो 6/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट which is equal to 1/6. So the probability of not getting a doublet would be 1 minus 1/6, that is equal to 5/6. So अब मुझसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स बताना है मुझे। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट डबलेट निकाल लेता हूँ पहले। मैं तीन बार थ्रो कर रहा हूँ, तीन बार थ्रो कर रहा हूँ, तो मतलब पहली बार में भी 5/6 मल्टीप्लाइड में दूसरी बार 5/6 और तीसरी बार में 5/6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे को एक बार भी डबलेट नहीं मिलेगा। उस चीज की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। मेरे को एक बार भी डबलेट मिलेगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग। और मेरे को क्या बोला गया, मेरे को बोला गया फॉल द नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉल द नंबर ऑफ डबलेट्स इन द थ्री थ्रोस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। सो दिस इज द केस फॉर नॉट गेटिंग अ डबलेट इन एनी थ्रो। देन अब मैं निकाल लूंगा क्या, मैं निकालूंगा एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी। एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक में 1/6, बाकी दो में 5/6। सो मैं 1/6 इंटू 5/6 करके इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट रो में डबलेट आ जाए, या फिर सेकंड रो में डबलेट आ जाए, या फिर थर्ड रो में डबलेट आ जाए। तीन केस होते हैं ना मेरे को, तो मैं इसको तीन बार ऐड कर दूं या थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। सो वहां से मुझे मिल जाएगा 75/216। दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट at least only once in three throws, and this is the probability of getting no doublet. Then मैंने निकाल लिया जीरो डबलेट का, मैंने निकाल लिया वन डबलेट का। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो बार डबलेट आ रहा हो और एक बार नॉन डबलेट आ रहा हो, मतलब दो बार 1/6 और एक बार 5/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डबलेट्स एंड वन नॉन डबलेट इज 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6। अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय थ्री, क्योंकि 5/6 फर्स्ट रो में भी हो सकता है, सेकंड रो में भी हो सकता है, थर्ड रो में भी हो सकता है। So this is the probability of getting two doublets and one non-doublet. So this is P of x equal to 2. Basically मेरे पास जो जो मेरे पास x हो सकते हैं, 0 1 2 3 हो सकते हैं। 0 1 2 3 मतलब क्या तो एक बार भी डबलेट ना आए, या फिर एक बार डबलेट आए, या फिर दो बार, या फिर तीन बार। सो दीज आर माई केसेस। सो ये था मेरा पी एक्स इक्वल टू जीरो, ये मैंने निकाला पी एक्स इक्वल टू वन, और ये मैंने निकाला पी एक्स इक्वल टू टू। नाउ फॉर पी एक्स इक्वल टू थ्री देयर इज ओनली वन केस, कि तीनों केसेस में मेरे पास डबलेट आ जाए। तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 विच इज 1/216। तब आपके पास टेबल है एक्स 0 1 2 3 के लिए। पी जीरो इज 125/216, पी वन इज 75/216। सिमिलरली पी टू एंड पी थ्री यू हैव ऑल द वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तीन डाइस थ्रो किए, तीन नहीं दो डाइस थ्रो किए तीन बार, और आपने प्रोबेबिलिटी निकाली कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डबलेट छह केस में आ सकते हैं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 विच इज 1/6। सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो अगर आपको डबलेट नहीं चाहिए, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय वन। सो 1 - 1/6 इज 5/6 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट। तो आपने ये दोनों चीज निकाल ली, उसके बाद आपने ये चार केस बनाए, वन डबलेट, जीरो डबलेट, टू डबलेट और थ्री डबलेट। आपने उसके प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। तो यही चीज मुझसे पूछी गई थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो ये मेरे पास आंसर है। अब मेरे को इसको वेरीफाई करना है, तो मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ। मैंने बताया था आपको कि जब मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करूंगा तब वो वन के बराबर आना चाहिए। सो व्हेन आई विल ऐड ऑल दीज फोर थिंग्स, 125 + 75 + 15 + 1, I will get
216 only. So I'm getting sum equal to 1. That's why I can say that my answer is correct. So whenever these type of questions are given, you can verify your answers by adding all the probabilities, because after adding all the probabilities you should get 1, and in this case since you are getting 1, so your answer is correct. So now let's move on to next problem. A basket contains 3 apples and 7 oranges. A fruit is drawn and put back in the basket. The process is repeated 3 times. What is the probability that the selected 3 fruits are orange? Basically मेरे को एक बास्केट दी गई है जिसमें मेरे पास 3 एप्पल्स है और 7 ऑरेंज है, एंड मेरे को क्या बोला गया है कि मैं उस बास्केट से एक फ्रूट निकालूं और इसको वापस उसी बास्केट में रख दूं। फिर मैंने उस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया। बेसिकली दिस इज द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ रिप्लेसमेंट। सो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द सिलेक्टेड 3 फ्रूट्स आर ऑरेंज। मतलब मैंने 3 बार निकाला है ना, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे को वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं तीनों बार ऑरेंज ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास 3 एप्पल्स हैं। लेट मी टेक द पेन। आई हैव 3 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस। सो फर्स्ट ट्राई में मेरे को पता है अगर मेरे को ऑरेंज निकालना है तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10। अब सेकंड ट्राई में मेरे को पता है कि क्योंकि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो मैं वापस उसमें ऑरेंज डाल रहा हूँ। एप्पल निकाल रहा हूँ तो वापस उसमें एप्पल डाल रहा हूँ, और ऑरेंज निकाल रहा हूँ तो वापस उसमें ऑरेंज डाल रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे नंबर ऑफ फ्रूट्स सेम है, वो कभी चेंज ही नहीं हो रहे। तो हर बार ऑरेंज निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/10 ही होगी। सो अब मेरे को ये बोला है कि मेरे को वो वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है जब मैं तीनों बार ये ऑरेंज निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, which is the probability of getting an orange first time or second time, first time and second time and third time, since they are independent of each other। मैं पहली बार ऑरेंज निकाल रहा हूँ, दूसरी बार ऑरेंज निकाल रहा हूँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि मैं वापस रिप्लेस कर दे रहा हूँ उसको। तो इनिशियली मेरे पास 10 फ्रूट्स थे, फाइनली भी 10 फ्रूट्स ही है, और उन फ्रूट्स का नंबर भी सेम है बेसिकली। तो मेरे पास मैं फर्स्ट टाइम में क्या निकाल रहा हूँ या सेकंड टाइम में क्या निकाल रहा हूँ या फिर थर्ड टाइम में क्या निकाल रहा हूँ, सारी चीज आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बिकॉज आई एम डूइंग रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्रूट्स। इसलिए आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग I will get my final answer as 7/10 into 7/10 into 7/10. So this is 0.343, which is my final answer. It would be 343 divided by 1000. Divide is missing here. So 0.343 is my final answer. Okay. Moving on to next one. This is also similar only. A jar contains 10 blue balls and 11 red balls. 2 balls are withdrawn without replacement। अच्छा, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसमें विद रिप्लेसमेंट था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स? तो बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट तो इस केस में भी रहेंगे, बट इस केस में क्या हो रहा था कि प्रोबेबिलिटी सेम थी। इस केस में प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहेगी क्योंकि आप वापस रिप्लेस नहीं कर रहे बॉल्स को। सो यहाँ पे 10 + 11 21 है टोटल, और मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। तो पहली बार तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/21, सिंपल। अब मैंने जब एक बॉल निकाल दी है तो आई एम ओनली लेफ्ट विथ 20 बॉल्स। तो 20 बॉल्स है और मेरे को पता है मैं एक रेड बॉल निकाल चुका हूँ। सो आई हैव 10 रेड बॉल्स एंड 10 ब्लू बॉल्स। सो अब की बार मेरे पास अगर मेरे को रेड बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/20, बिकॉज टोटल बॉल्स आर 20 ओनली। सो दिस इज इक्वल टू 10/20। अब वापस मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स निकालना है, मतलब आई नीड टू कैलकुलेट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वापस। और मेरे को पता है ये दूसरे इंडिपेंडेंट है। मतलब इसको सोच के देखो ना, आप पहली बार में क्या निकाल रहे हो, दूसरी बार में क्या निकाल रहे हो, वो आपस में डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? आपने पहली बार में रेड बॉल निकाल ली, अब दूसरी बार में आप रेड बॉल निकालो या ब्लू बॉल निकालो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट केस कि आपने पहले क्या निकाला। आप पहले चाहे रेड बॉल निकालो चाहे पहले ब्लू बॉल निकालो, दूसरी बार में आप कुछ भी निकाल सकते हो। बोथ द केसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसलिए आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बोथ दीज कंडीशंस पी ए एंड पी बी। So I will get 11/21 into 10/20 as my final answer, which is equal to 110 upon 420. So 11/42 is my final answer for this problem. ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे वही वाली थ्योरम लग रही है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाली, कि अगर मेरे दो इवेंट्स आपस में
इंडिपेंडेंट है कि उनका occurrence इंडिपेंडेंटली हो सकता है, then I can simply multiply both the probabilities, which is P of A intersection B is equal to PA into PB. PA into PB. ठीक है. Uh, Now I think we can wrap up the session, and the rest problems we will be doing in tomorrow's session. So okay, जितना मैंने आज बताया इसको रिवाइज कर लेना, because these are important formulas, especially this random variable one and the base theorem, because these are the two three things which are asked frequently in JEE mains. ठीक है, and the rest questions we will do tomorrow. Okay, thank you.